नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। असम के बटद्रोआ में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए आज बड़ा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में करीब 600 पुलिस कर्मियों को लगाया गया। करीब 1500 बीघा जमीन से अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। इसकी जानकारी वहां बसे लोगों को पहले ही दे दी गई थी और इसलिए ज़्यादातर लोगों ने अपने घर से सामान हटा लिए थे। अतिक्रमण के खिलाफ बटद्रोआ में चलाया जा रहा अभियान शांतिपूर्ण रहा है। इस अभियान में जो लोग जमीन से बेदखल किए गए हैं, उनका कहना है कि उन्हें पहले के नेताओं ने आश्वासन देकर जमीन दिलाई थी। हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए उस पर अमल कर रही है। लेकिन यहाँ सवाल यह भी है कि यदि अतिक्रमणकारी संदिग्ध हैं तो उन्हें बचने में मदद करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। बेदखल किए गए लोग अपनी घर बार छोड़कर कहाँ गए हैं, सरकार का इस पर क्या रवैया है। मुद्दा में इस पर राय रखने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ढींग से AIUDF के विधायक अमीनुल इस्लाम, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जाफरीन महजबीन, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रमन झा हमसे जुड़ जाएंगे, BHP से जुड़े अधिवक्ता शांतनु नायक भी जुड़ चुके हैं, TMC माइनॉरिटी सेल के नूर आमीन भी हमसे जुड़ चुके हैं। शत्रुओं की जमीन पर अवैध दखल के सभी आयामों को अध्ययन करने के लिए बनी आयोग के अध्यक्ष और रामगुड़ी के विधायक प्रदीप हजारिका भी हमसे जुड़ेंगे। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले सुनाते हैं आज बटद्रोआ से आई वो प्रतिक्रिया जहां ये बेदखल अभियान चल रहा था। आमी जिखिनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशনৰ পৰা খবৰ পাইছিলোঁ যে সেই মাটি ইলিগালি অকুপাই কৰা হৈছিল। সেইমতে জিলা প্ৰশাসনে আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে। আমি জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ মতে তাত পুলিচ ডিপ্লয় কৰিছিলোঁ আৰু আজি জিলা প্ৰশাসনে তাত এটা অভিযান চলাইছে, উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে। আমি ফ'ৰ্চ ডিপ্লয় তাত 14 তাৰিখত কৰিছিলোঁ। 14 তাৰিখৰ পৰা 18 তাৰিখৰ ভিতৰত প্ৰায় 60% মানুহ তাৰ পৰা নিজাববীয়াকৈ গুচি গৈছিলে। এনালিচিছ কৰি তাত যেটো দেখা গৈছে, যিখিনি মানুহে তাত মাটিটো বেদখল কৰি আছিলে তাত প্ৰায় 75-80% মানুহ, 75 পৰা 80% মানুহ এনেকুৱা আছিলে যিখিনি মানুহ ক'ৰবাত বেলেগ বেলেগ জেগাত পট্টা মাটি আছে আৰু তেওঁলোকে পট্টা থকা সত্ত্বেও এনেকুৱা এটা মাটিত আহি বেদখল কৰিছিলে আৰু বহিছিলে। এইখিনি মানুহ তেওঁলোকক নিজৰ নিজৰ যিটো মাটি আছে তালৈ গুচি গৈছে। বাকি যিখিনি তাত আনঅথৰাইজ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে এইখিনি বুলডোজাৰ দি আজি উচ্ছেদ কৰি দিয়া হৈছে। আৰক্ষী হস্তময় আছে আৰু এনেকুৱা আৰু বেদখলকাৰীক বহিবলৈ দিয়া নহ'ব। ব্যৱস্থা জাৰি হৈ আছে আৰু এতিয়ালৈকে কোনো আমি প্ৰতিৰোধৰ সন্মুখীন হোৱা নাই। কিমান দিন থাকিব ইয়াত? এইটো যেতিয়া পৰিস্থিতি একেবাৰে উন্নত নহয় তালৈকে সেই সময়লৈকে বাহল থাকিব। বা এতিয়া হস্তময় আছে, পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে। আজি আমি প্ৰায় আমাৰ যিমানখিনি প্লেণ্ট আছে সেইটো আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ। প্ৰায় 1100 বিঘামান মাটি আমি এনক্ৰোচমেণ্ট মুক্ত কৰিলোঁ আৰু আজিৰ পৰা প্ৰচেছ মোৰ মতে নচলে, কিন্তু যদি কিবা নিৰ্দেশ আহিব ওপৰৰ পৰা আমি আমাৰ এদিনতে গোটেইখিনি কাম পিছফুলি শেষ হৈ গৈছে। উই আৰ থেংকফুল টু এভৰিৱান ফৰ দেয়াৰ কোঅপাৰেশ্যন, চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, দ্য পাব্লিক, আমাৰ যিমান ফ'ৰ্চ পাৰ্চনেল আৰু আমাৰ ছিনিয়ৰ্ছৰ গাইডেঞ্চৰ মতে আমাৰ গোটেইখিনি কাম খুব শান্তিভাৱে আজি হৈছে। বহুত দেৰি হৈ গৈছে, কাইলৈ থাকিব, তাৰপিছত আমি কাইলৈ গম পাম যি অৰ্ডাৰ্ছ আহে সেইটো হিচাপত তেওঁলোকক ঘূৰাই পঠোৱা যাব। মাটি দখল কৰা মানুহক যদি আমি খেদি পঠালে মানৱীয়তাৰ কথা কয়, গুৱাহাটীখনো কেতিয়াবা লৈ ল'ব। দেশত আইন কানুন নাই নেকি? ৰাজ্যত আইন কানুন আছে, আমিতো আইনৰ মতে চলিব লাগিব। আইন কানুনৰ মতে চলিবলৈ গ'লে যদি কোনোবা বিৰোধী দলে গালি পাৰে আমাৰ আপত্তি নাই। আমি এটা কথাটো চিৰিয়াছলি কৰিব লাগিব, গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত এখন চৰকাৰে কাকো বেদখল কৰিব মাটি দিব নোৱাৰে। আৰু তাতে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বৰদোৱাক আমি সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ বেদখলৰ পৰা মুক্ত কৰিবই লাগিব। সকলে অবৈধভাৱে মাটি দখল কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি এই যি প্ৰক্ৰিয়া চলাই থাকিম। ये थी कुछ सरकारी प्रतिक्रिया। अब आपको सुनाते हैं बटद्रोआ में अवैध कब्जा कर बैठे लोगों ने क्या बोला है। उन्होंने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इन लोगों ने बताया है कि उन्हें पूर्व की कांग्रेस के शासन में बसाया गया था। इन लोगों ने दिवंगत पूर्व मंत्री दिगेन बोरा और कांग्रेस नेता गौतम बोरा का नाम भी लिया है। 2012 পৰা স্কুল পঢ়াই আছোঁ। এইটো বহাইছিলে দিগেন বৰাই। তেতিয়াৰ পৰা ইয়াতে আছোঁ আৰু চেণ্টাৰটো দৌৰাইছোঁ। যেতিয়া গৌতম বৰা ছাৰ আমাৰ বিধায়ক আছিলে তেতিয়া আমাৰ চেণ্টাৰটো দিলে। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে তেতিয়া চেণ্টাৰটো দৌৰাইছে আৰু আমাৰ চেণ্টাৰটো হোৱাৰ পিছত
মানে 2012 পৰা পঢ়ুৱাই আছোঁ। পিছত স্কুল বিল্ডিং আহিছে, বিল্ডিঙৰ কাৰণে 1 কটা মাটি লাগে। ইয়াৰ পৰাই আমি খাজনাতে দি আহিছিলোঁ। তেতিয়া গম পাওঁ চৰকাৰী ভূমি, কিন্তু দিগন বৰা ছাৰে যে দিছিলে 14 ঘৰ মানুহক 14 বিঘা মাটি, এতিয়া কৈছে যে আৰু 14 ঘৰ মানুহক কোনো উঠায়, ইয়াত এবছৰ নহয়। আমি ইয়াত এই এনেই বহিছিলোঁ, গৰীব মানুহ মাটি চাটি নাইকিয়া। চৰকাৰে একবাৰ কি কৈ বাহিৰ কৰিছিলে, পুৰি ডবি আন বাহিৰ কৰিছিলে। চৰকাৰে বোলে মাটি দিব, আমি এইটো মাটি দখল কৰিছোঁ, চৰকাৰে মাটি দিব বোলে আমাক। তেতিয়া ইয়াত যেতিয়া বহিলোঁ, বহাৰ পিছত আপোনাৰ 9বাৰ ইলেকশ্যন হৈছে। 9বাৰ ইলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত গৌতম বৰা আহি পেলাই গৌতম বৰা চহী কৰিছে, দিগন বৰা আমাক ইয়াত শিবিৰ বস্তি পাতি দিছে, তোমালোকে ইয়াত থাকা, তোমালোকে ক'তো যাব নাই। চৰকাৰে যেতিয়ালৈকে তোমালোকক সুবিধা নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা উঠাব নোৱাৰিব। তেনেকৈ আমাক ইয়াত বহিবলৈ দিছে, শিবিৰ বস্তি বনাই দিছে। তাৰপিছত আমাৰ তজি খাজনা লগাই দিছে, লিখি দিছে। तो आपने प्रतिक्रिया सुनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता रमन झा। रमन झा, आज के इस अभियान पर पहले प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आप सरकार के इस अभियान से संतुष्ट हैं? देखिए, अगर कोई भी बेदखलकारी किसी भी सत्र का या किसी भी संस्थान का ज़मीन को अगर दखल करता है तो सरकार को उसे खाली करवाने का हम इस कदम को स्वागत करते हैं, क्योंकि इस तरह की काम जो कोई भी करता है ये अनैतिक है। क्योंकि सत्र किसी भी धार्मिक संस्था का या किसी भी धार्मिक संस्थान का ज़मीनों को दखल करना गलत है, चाहे वह सत्र हो, मंदिर हो। आज हमारे कामाख्या मंदिर का भी बहुत सारा ज़मीन गुवाहाटी में दखल होकर रखा हुआ है। तो हम तो सरकार से यह भी आग्रह करेंगे कि कामाख्या देवोत्तर बोर्ड का जो ज़मीन लोगों ने दखल करके रखा है उसे भी खाली करवाएं। और सबसे बड़ी बात है कि वो मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आता है, झालुकवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में वह क्षेत्र है, वहाँ भी है। और बटरदुआ का भी हम यही कहेंगे कि वहाँ जिन लोगों ने गैर कानूनी ढंग से सत्र के ज़मीन को दखल किया है उनका बेदखल होने का कांग्रेस पार्टी हम सरकार के इस कार्य का समर्थन करते हैं। लेकिन जो अभी हम सुन रहे थे कि पीयूष हजारिका जी ने कहा संदेह युक्त नागरिक, अगर वहाँ संदेह युक्त नागरिक है तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके हम ये सरकार से आह्वान करते हैं कि उन नागरिकों को, संदेह युक्त नागरिकों को गिरफ्तार किया जाए। और वो जिस देश के नागरिक चिन्हित होते हों, चाहे वो बांग्लादेश के हों, पाकिस्तान के हैं या भूटान के हैं, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, गृह मंत्रालय उनके पास है, तो वो उन्हें गिरफ्तार करके फ़ौरन आज सुनते आएंगे टीवी में, आप लोग सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ विदेश में मोदी जी की तूती बोलती है। तो ऐसे परिस्थिति में उन नागरिकों को तुरंत उस देश में उनको वापस भेजा जाए अपने देशों में। तो हम सरकार से आग्रह करेंगे। दूसरी चीज़ है कि हम किसी भी तरह के गैर कानूनी ढंग से दखल किए हुए ज़मीन पर का हम सही समय, कोई भी पार्टी हो, चाहे यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई भी पार्टी हो, इस तरह के मुद्दे पे हमें सरकार के साथ, समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसमें चिन्हित रूप से दखल करते हैं तो यह गलत है। क्योंकि अभी कुछ लोगों ने कहा कि जिन्हें दिगन बरा ने यहाँ रखा था उन परिवारों को बेदखल नहीं किया जाएगा, तो ये भी गलत है। जो बेदखलकारी हो उनको उस जगह से खाली करवाना उचित है। और साथ में अगर वो भूमिहीन है तो ये मानवता के नाते, ह्यूमन राइट्स के नाते यह सरकार का दायित्व बनता है कि भूमिहीन लोगों को कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था करे, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान जीवन का एक बेसिक आधार होता है। अगर वो भारतीय नागरिक हैं तो, अगर भारतीय नागरिक नहीं है तो उन्हें देश से बाहर निकाला जाए, यह सरकार से हमारा आग्रह है। जी, एक ही प्रतिक्रिया में आपने बहुत सारी बातें कह डाली हैं। डॉक्टर जाफरीन महजबीन, आप सुन रही थी इनकी बातों को जी, और इन्होंने सवाल भी खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बटद्रोआ में आप कार्रवाई कर रहे हैं और कामाख्या धाम में इसी तरह का अतिक्रमण है, वहाँ आप इस तरह का अभियान नहीं चला रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि बटद्रोआ में जो लोग संदिग्ध, अगर माना जा रहा है कि वो संदिग्ध हैं, तो फिर उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। इस तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जो लोग संदिग्ध नहीं पाए जाते हैं तो उन पर उनको विस्थापित करने के लिए, उनको पुनर्वास के लिए कोई योजना चलाई जाए। धन्यवाद चौहान जी। अभी देखिए जिस तरीके से हमारी सरकार माननीय डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो पदक्षेप लिए हैं, उनको हमारे नागरिकों को, असम के नागरिकों को, हर समाज के नागरिकों को सम्मान से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसमें इस बात की अहमियत हम लोग को सर जो पदक्षेप लिए हैं उसमें ये अहमियत है कि वो असम के जो इंडिजिनियस
पॉपुलेशन है उनको सम्मान करते हैं, पर उन्होंने कभी धर्म इसमें लाए नहीं है। जो हमारे विरोधी दल के प्रवक्ताओं और विशेष रूप से विरोधी दल के पार्टी के लोग जो वचन ये विश्लेषण हमारे बीच में बोल रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि देखिए बीजेपी कभी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं किए हैं और कभी नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमारे जो केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, आप देखिए ये जो अपीजमेंट टू नन एंड जस्टिस टू ऑल उसी आदर्श में हम लोग पार्टी को चलाते हैं और साथ ही सरकार को चला रहे हैं। अभी रही बात मुद्दे की, जो हमारी अभी लैंड एविक्शन की जो ये बात चल रही है, जो जिस विषय में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, अभी देखिए यहाँ पे 1000 से ज़्यादा बीघा लैंड एविक्शन हो रही है। दूसरी बात, जो प्रदीप हजारिका कमेटी जो गठन किए गए हैं, उनकी नेतृत्व में जो कमेटी गठन किए गए हैं, उसमें रिपोर्ट आए हैं कि अभी तक करीबन 7,504 बीघा लैंड करीबन आपका हो जाता है 1900 एकड़। 1900 एकड़ लैंड है, जिसमें करीबन 303 क्षेत्र है। अभी देखिए उसमें भी उच्छेद ज़रूरी है और ज़रूर हमारी सरकार पदक्षेप लेंगे। पर रही बात हमारी, अभी जो राय साहब ने बताया है, कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने जो बताया है कि उनको कहाँ रखेंगे, अभी जैसे कि देखिए ये डिस्प्लेस पॉपुलेशन, आप बहुत बड़ी चीज़ आपने कह दिया है राय जी, आपने बताया है कि रमन झा जी आपने बताया है कि उन लोगों को डिपोर्ट करना चाहिए। ये सरकार का मामला है, सरकार फैसला लेंगे, हमारे आइन न्याय कानून है। और पर दूसरी बात और एक चीज़ आप लोग देखिए, ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन क्षेत्र के है, सरकार के है, सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के है। तो ये जो सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के है, और साथ ही में देखिए यहाँ पे जब लोग बसते हैं, जब आके बसते हैं, तो उन लोग को वो लोग सूचित रहते हैं कि वो सरकार के ज़मीन है। और जानबूझ के अगर कोई नेता उन लोग को जो कांग्रेस के नेता थे उस समय के, अभी जो हमारे लोग जितने भी एविक्टेड लोग, उन लोग ने अभी वार्ता प्रेरण किया है संवाद माध्यम में कि उन लोग को कोई ने अभी गौतम बोरा का नाम बताया, दिगन बोरा का नाम बताया, पता नहीं कौन कौन है। उस देखिए कांग्रेस का उस समय में जो असम के पहले मुख्यमंत्री थे 1944 में, गोपीनाथ बोरदोलोई जी, उनके समय में मुस्लिम लीग लीड कर रहे थे सर सादुल्ला। उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारे विष्णुराम मेधी जी जो उनके बाद में जो आए मुख्यमंत्री असम के, तो उनके पास निवेदन गए, सर सादुल्ला लीडिंग कमेटी के साथ वो टीम बना के, फखरुद्दीन अली अहमद जी थे हमारे राष्ट्रपति थे उस समय के, साथ में तैयबुल्ला जी थे, काफ़ी लोग एक गुट हो के उन्होंने वो दिल्ली कार्यालय में, आप लोग जो कांग्रेस में हाई कमान बोलते हैं, वहाँ जाके दस्तखत दाखिल किए कि क्या बताए उन्होंने कि अगर आप लोग ये एविक्शन वाले लॉ, अगर कानून, अगर आप लोग एविक्शन की पॉलिसी लेंगे हाथ में, हम लोग की वोट टूट जाएंगे। तो उसी समय से हितेश्वर सैकिया के समय से 1991 के समय से उन्होंने, हितेश्वर सैकिया ने अपना इंडिविजुअल व्यक्तिगत अपना मंतव्य से उन्होंने एक अपना पर्सनल पॉलिसी बना के लोगों को रहने दिया। वो वोट बैंक पॉलिटिक्स था, वो कांग्रेस का राजनीति था, और बीजेपी ये कभी नहीं किए है। ये शुरू हुआ था गोपीनाथ बोरदोलोई के समय में, जब ये एविक्शन शुरू हुआ था इन द ईयर 1988 में भी बटोद्रा में ये ऐसा हुआ था। और साथ ही में मैं आपको और एक चीज़ बताती हूँ चौहान जी, साथ ही में ये जो है आप लोग बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम जो रूप दे रहे हैं, इसमें देखिए यहाँ पे नागरिक हो या बेनागरिक हो, जो हमारे इलीगल इमिग्रेंट हो, जो भी हो, उनको खाली करना ही होगा। सरकारी जो ज़मीन है, वो ज़मीन को कोई वहाँ पे दखल नहीं कर सकते हैं। और रही बात कि लोग जब वहाँ पे प्रशासन, जब आरक्षी प्रशासन जब तो इस तरह का अभियान आप दूसरी जगहों पर भी चलाने जा रही है आपकी सरकार? चला रहे हैं, अभी गौरवखुटी से शुरू हुआ है हम लोग के उच्छेद। उसके बाद अब देखिए, क्योंकि ये और इन लोग को काफी बार सरकार की ओर से सूचना दी गई है लोगों को, जो वो लोग ने अहमियत नहीं दिए हैं। सरकार की मंशा साफ है, इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हमारे साथ और भी मेहमान हमसे हमारे सरकार चाहते हैं कि एक बेदखल मुक्त आसाम गढ़े। जब 2016 में जब हमारी सरकार आई थी, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय में शपथ ग्रहण के समय से आगे से वो बोल के आ रहे हैं, अभी तक बोले जा रहे हैं कि हमको बेदखल मुक्त एक आसाम बना के
खड़ा ठीक करना है। डॉक्टर जाफरीन की प्रतिक्रिया के बाद हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। मुद्दा में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बेदखल अभियान की जो बटद्रोआ में चल रहा है, और यहाँ ये बेदखल अभियान इसलिए खास है क्योंकि इस बार का बेदखल अभियान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा है। कहीं से भी इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठी है। हालांकि हम बात कर रहे हैं उन लोगों से जिनको परेशानी हो सकती है, सरकार से कुछ शिकायतें हो सकती हैं, वो आगे आकर अपनी बातें भी कह सकते हैं। शांतनु नायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांतनु नायक, आप सुन रहे थे इस पर जो चर्चा हो रही है, उस पर इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आप जो कानूनी पहलू हैं इसके, अब यहाँ से जो लोग एक तरह से विस्थापित हो रहे हैं, हालांकि सरकार कह रही है कि 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिनका दूसरे जगहों पर पट्टा की ज़मीन है, तो ऐसे में तो सवाल ही नहीं उठता कि पुनर्वास की। लेकिन फिर भी कुछ लोग तो जरूर बचे होंगे जिनको ये दिक्कत होगी इस बेदखल अभियान से, उस पर आपकी क्या राय? हाँ, नमस्ते जी। देखिए, मेरा यही कहना है हर राजनीतिक पार्टी से, जो आप लोग राजनीति जितना चाहे कर लीजिए, लेकिन राजनीति करते हुए आपकी देश की सुरक्षा को किसी हालत में देश की सुरक्षा पर कोई दाग लगे, देश की सुरक्षा पर कोई सवाल पैदा हो, इस तरह की राजनीति करने से फायदा क्या है? अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हमें अगर देश को ही बेचना पड़े, जो हम इस तरह की राजनीति आज ऐसे भी सुनने में आता है, काफी लोग हैं जिनका यहाँ उन लोग आने के पहले ही यहाँ रेशन कार्ड बन जाता है, जबकि वो भारत में है ही नहीं, वो कहीं बांग्लादेश में है या और किसी देश में, वहां रहते वहां का भी वो नागरिक रहते हैं और यहाँ का भी उनको रेशन कार्ड मिल जाता है। कई दिन पहले जो एनआरसी का हुआ था, एनआरसी के टाइम में हमने देखा था, क्या देखा था, जो आसाम में किस तरह की परिस्थिति हुई थी। आज आसाम बोलिए, आप वेस्ट बंगाल की हालत बोलिए, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। तो हर वक्त ये जो हिंदू समाज है, आज मुसलमानों के लिए 56 देश है जहां उन लोग मेजोरिटी में है। एक हिंदुस्तानी है जहां हिंदू कह सकते हैं ये हमारा देश है। अगर हिंदुस्तान में भी हिंदुओं की जमीन दखल की जाती है, मंदिर को छत्र को, नामघर को अगर कब्जा किया जाता है, सरकारी जमीन कब्जा हो रही है, तो ये इस तरह की राजनीतिक नेता लोग से यही हमारा विश्व हिंदू परिषद के तरफ से यही है। आप लोग जितनी चाहे राजनीति कर लीजिए, लेकिन देश की अखंडता, देश का जो किसी तरह की देश की सुरक्षा पर जब भी सवाल पैदा न हो, इस तरह की राजनीति कीजिए। अगर आज हम खुद अगर राजनीति करते हैं और ये नहीं सोचते जो अगर ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए देश की सुरक्षा को हम दांव पर लगा देते, कल जाके मेरे बेटे बेटी यहाँ रह पाएंगे या नहीं, ये सवाल पैदा होता है। आज आसाम के, आप कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ हम सभी को मालूम है। आज ठीक आसाम में नॉन ऑफिशियली अगर हम बोले तो 40% मुस्लिम आबादी है। वेस्ट बंगाल की हालत देखिए, वेस्ट बंगाल की हालत, रमन झा जी आपको टोक रहे हैं, तो इस तरह अगर हो रहा है त्रिपुरा शांतनु नायक जी, रमन झा जी आपको टोक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपना जो भी वक्तव्य है वो बटद्रोआ पर केंद्रित रखें, आप हिंदू मुस्लिम की बात न करें। तो इस तरह से इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, ये हिंदू मुस्लिम की बात है। हिंदू जाए तो कहाँ जाए, ये बोलिए ना हम लोग को, हिंदू जाए तो कहाँ जाए। चलिए शांतनु नायक जी आपके ऊपर जो जवाब है वो रमन झा जी से ले लेते हैं। फॉरेस्ट लैंड में अच्छा, आज तक आप लोग किसी ने सुना है कि हिंदू ने किसी की जमीन दखल की है, हिंदू ने किसी का मजहब पर हाथ दिया है? कभी हुआ है ऐसा? कभी नहीं हुआ। तो अगर मैंने हर वक्त टारगेट हिंदुओं को क्यों किया जाता है? और सरकारी जमीन के बारे में आप लोग परसेंटेज निकालिए, जो कितने हिंदुओं ने कहां तक सरकारी जमीन पर दखल किया है।
या उन लोग ने इलीगल ये किया है। जी शांतनु जी आपकी बात आ गई। जी शांतनु जी आपकी बात आ गई। आपके सवालों का उत्तर रमन झा जी देंगे। रमन झा जी वो कह रहे हैं कि एक जो खास समुदाय है वो सरकारी जमीन पर दखल करता है, लेकिन शांतनु ने पहले जो बातें कही है वो वाजिब है हमें लगता है, क्योंकि जो अवैध नागरिक हैं जिन्हें आप संदिग्ध नागरिक भी कहते हैं, आप भी सवाल उठाते हैं, विपक्ष उठाता है, सत्ता पक्ष उठाता है, संदिग्ध कहा जाता है, लेकिन जब उनके पास कानूनी कार्रवाई की बात होती है तो उनके पास दस्तावेज मिलते हैं। ये दस्तावेज उनके पास सालों से हैं, इसे कौन बनवाता है? आपके शासनकाल में ये दस्तावेज बने हैं और इस तरह के सवाल उठ भी रहे हैं। सबसे पहली बात है कि मैं यह चीज़ तो क्लियर कर दूं कि कोई भी दस्तावेज कोई राजनीतिक दल का नेता नहीं बनाता है। वो अगर बनता है तो सरकारी कार्यालय से बनता है और जिसके बाद एक रिकॉर्ड होता है। अगर किसी सरकार को यह लगता है, अभी एनआरसी हुआ था, एनआरसी में तकरीबन 19 लाख लोग थे जो एनआरसी में जिनका नाम इंक्लूड होने से, संलिप्त होने से रह गया था। ऐसे लोग जिनका नाम इंक्लूड होने से रह गया था, उसमें जो आंकड़े तो धर्म के नाम पे नहीं है, लेकिन जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, कहा जाता है तकरीबन 12 लाख से ज़्यादा उसमें हिंदू है। इन्होंने कहा कि हिंदू बेदखलकारी, मैं हिंदू या मुसलमान नहीं कर रहा, बेदखलकारी जो है बेदखलकारी है। जो ज़मीन दखल कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कई जगह आप देखेंगे कि जंगलों में जो हमारे मूलभूत जो असम के मूल निवासी हैं वो जंगलों में रहते हैं, उनके पास ज़मीन का कोई पट्टा नहीं होता है, वो जंगलों की ज़मीन पर रहते हैं, तो क्या आप उन्हें बेदखलकारी कहेंगे? दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है, मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये संदिग्ध नागरिक हैं तो आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी राज्य में सरकार है, उन्हें गिरफ्तार कर क्यों नहीं रिपोर्ट करते? क्यों आप उनके नाम पर चुपी रह जाते हैं? यानी आपकी पहले जो गलती हुई है उसको आप मान नहीं रहे हैं, आप रुक जाए। दूसरी बात, बार बार कहा जाता है हिंदू के लिए हिंदुस्तान, हिंदू के लिए हिंदुस्तान। हिंदुस्तान मतलब हिंदू नहीं है। हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है। नेपाल जैसा राष्ट्र, जिसे कुछ साल पहले तक जो नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वो आज के डेट में वो भी सेकुलर कंट्री है, लेकिन नेपाल भी हिंदुओं के लिए है। मॉरिशस में हिंदू रहते हैं, फिजी में हिंदू रहता है, सिंगापुर में हिंदू रहता है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही हिंदू रहता है, यह कहना गलत होगा। आप दूसरे राष्ट्र के हिंदू नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि इस देश को धर्म के नाम पर विभाजन के लिए, सबसे पहले तो सावरकर जी ने प्रस्ताव लाया था। वडोदरा जो हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ था उसमें जी आपने जवाब दे दिया। अब तो ये चीज़ है। तो अब बटरदुआ का जो मुद्दा है, मैंने पहले भी कहा कि किसी भी धर्म के नाम पर ना जोड़े कोई भी बेदखलकारी जो किसी भी धार्मिक संस्था का हो। मैंने कहा चाहे वो सत्र हो, मंदिर हो, मदरसे, कोई भी बेदखलकारी सरकारी जमीन पर कब्जा करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस का भी यही मानना है। जी रमन झा जी, हम एक आंकड़ा आपको बताते हैं। कमीशन फॉर रिव्यू एंड असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ सत्रलैंड, जो आयोग बना था मुख्यमंत्री के निर्देश पर, उसकी रिपोर्ट दिसंबर 2 को आई और उसी पर यह कार्रवाई की जा रही है। उस रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है आपको सुनाते हैं। 36,000 से अधिक बीघा जमीन जो 11 जिलों में है, सत्र भूमि में है, उसके अधीन 7,504 बीघा जमीन जो है अवैध कब्जे में है और सबसे ज़्यादा सत्रों की जमीन जो है अवैध कब्जे में बरपेटा जिले में है। 5,545 बीघा जमीन बरपेटा में है। सितंबर में सरकार ने विधानसभा में ये बताया था कि 4,449 परिवारों को बेदखल किया गया है मई 2021 से, यानी कि हिमंत विश्व शर्मा की सरकार जब आई तब से। दरंग में जो आपको पता ही है, गौरू खुटी का यह मामला आ गया था। 2,153 परिवारों को बेदखल किया गया। 805 परिवारों को लामडिंग जो होजाई जिला के अंतर्गत आता है वहाँ बेदखल किया गया। 404 परिवारों को धुबरी में बेदखल किया गया। इस तरह के अभियान से आप खुश हैं? आप तो सवाल उठा रहे थे कि हर जगह से जहाँ जहाँ बेदखल है सरकार। मैंने पहले भी कहा, किसी भी तरह का अभियान, अगर कोई भी धर्म, जाति, भाषा के लोग अगर मंदिर का ज़मीन, मस्जिद का ज़मीन, सत्र का ज़मीन या सरकारी ज़मीन को दखल करके रखा हुआ है और वो पहले से ही उनके पास, जैसे कि अभी मैं सुन रहा था कि हमारे स्पेशल डीजीपी साहब कह रहे थे कि 70% लोग पहले से ही उनके पास ज़मीन का पट्टा है, तो ऐसे लोगों को अगर सरकार खाली करवाती है ज़मीन को तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे लोगों जो ज़बरदस्ती अपने फ़ायदे के लिए सरकारी ज़मीन का अधिग्रहण को दखल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को खाली करवाया जाए, हम उनके समर्थन में हैं। लेकिन जो हमारा कहना क्या है कि मानवता के आधार पर जो भूमिहीन है उन्हें भूमि दिया जाए। कहीं ना कहीं से वो कहाँ जाएंगे? उन्हें कहीं ना कहीं सरकार तो बसाएगी, नहीं बसाएगी तो वो एक जगह से उठेंगे और दूसरी जगह चले जाएंगे। जी, एक जगह से उठेंगे और दूसरे जगह चले जाएंगे। बड़ा सवाल है, तो इसको कहाँ ले जाएगा? इस पर हम और भी बातचीत जारी रखेंगे। तीसरी सबसे बड़ा बात है कि मैं बार बार कहता हूँ, मैं सरकार को चुनौती देता हूँ कि अगर यहाँ कह रहे हैं बार बार अवैध विदेशी नागरिक है, अवैध विदेशी नागरिक है, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रही है आपकी सरकार?
क्या कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह? ठीक है, क्या कर रहे हैं ये सवाल नरेंद्र आपने मोदी? कर दिया और उन्हें हमें यहाँ निकालिए, पर इस देश से बाहर जी, निकालिए, अच्छा, हम जी, आपके साथ नहीं, हैं। डॉक्टर और मैं जाफरी, अगर हम आंकड़ा आपको दे तो मैं मौका आंकड़ा भी देंगे। दूं। इन्होंने मैं एक आंकड़ा सवाल भी उठाया, दूं। नहीं आपने एक महत्वपूर्ण पिछले सवाल उठाया 10 है। साल में कितने भी देशों को रिपोर्ट किया ठीक गया है, है, ठीक और है। कांग्रेस के मनमोहन सिंह की सरकार के आप आंकड़ा ले लीजिए। ठीक है, इसी 85,000 सवाल को देशों देखिए को- रमन नहीं, झा इसी जी, सवाल किया गया था, 85,000 डॉक्टर देशों जाफरीन को जाफरीन किया आपको गया रोकना था। चाहेंगे। 85,000 समय हो गया है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इसी सवाल का उत्तर हम ढूंढेंगे। स्वागत है मुद्दा में आपका। फिर से हम चर्चा कर रहे हैं बटद्रोआ में हो रहे बेदखल अभियान की और इस पर उठ रहे सवाल की। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्थानीय नेता हैं टीएमसी के नूर अमीन। नूर अमीन साहब, आपका स्वागत है। क्या आपको आपत्ति है इस अभियान से? क्या सरकार के पक्ष से आप सहमत हैं? बात यह है कि यहाँ पे जो इविक्शन हो रहा है, ये इविक्शन पे अभी हमें कुछ लोगों के साथ बातचीत किया और पहले से ही ये नोटिस हो रहा था और कुछ लोग अपने मन से ही अपना जगह आज से कई दिन के पहले ही छोड़ रहा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जिस लोगों को यहाँ से इविक्शन करके हटा दिया, मैं सरकार को और हमारा मुख्यमंत्री माननीय हिमंत बिस्वा शर्मा जी को एक सिफारिश करूंगा कि जिसके पास अभी तक घर या जमीन नहीं है, इसको जमीन या घर जैसे हो सके कहीं पर देना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी का बात है। इसलिए मैं यही कहूंगा सरकार को, सर, क्योंकि यहाँ पे जो 17 का जमीन है, 17 का जमीन को बेदखलकारी के कवल से मुक्त करना हमारा सभी सारे असमवासियों को ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं चाहूंगा जिसे ये 17 भूमि ये हिंदू मुसलमान या जैन क्रिश्चियन के लिए नहीं, ये हमारा सारे असम वासियों के लिए स्वाभिमान का एक जगह है। ये स्वाभिमान रक्षा करना हमारा सभी लोगों का कर्तव्य है। और हम टीएमसी से ही यही बात कहूंगा कि जिस लोगों को अभी तक बेघर हो गया, जिस लोग अभी बेघर हो गया और बेघर होने वाले को सरकार या प्रशासन ने फिर कहीं पर जगह देना होगा, यही हमारा दावी है। जी ठीक है। नूर अमीन साहब, आपको जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने एक कमीशन बनाया था, 2 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी और वो रिपोर्ट के बाद अब ये अभियान चलाया जा रहा है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि उन सभी लोगों से बातचीत किया गया है, उनके आवेदन लिए गए हैं और ये फैसला लिया गया। क्या आपको लगता है कि उसमें से कुछ लोगों की बातें सरकार ने नहीं सुनी? कुछ लोग निराश भी हैं सरकार के इस कदम से? बात ये नहीं है, क्योंकि अभी तक जिसके साथ हमारा बातचीत हुआ, ये सभी लोगों ने कहा कि ये 15-20 दिन के पहले ही नोटिस मिला और इसलिए कुछ लोगों तो अभी तक चला ही गया। लेकिन जिसके पास घर या जमीन भी नहीं है, ये लोग कहाँ जाएगा? इसलिए ये सरकार का दायित्व भी है, कर्तव्य भी है कि सरकार ने इस लोगों को जिसके पास अभी तक जमीन नहीं है, स्थायी भूमि नहीं है, इसको अभी देना चाहिए। जी मैं यही दावी करूंगा। और हमारा तृणमूल कांग्रेस असम प्रदेश या हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से भी यही दरखास्त करूंगा। और यहाँ से एक बात अभी हमारा मालूम हुआ, एक झूठा निकला था कि यहाँ पे मुस्लिम या हिंदू कम्युनल फीलिंग्स के बारे में निकला, लेकिन यहाँ पे तो जो बेदखलकारी है, या हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी लोगों को निकला गया। इसलिए मैं कहूंगा कि यहीं पे कोई कम्युनल फीलिंग्स नहीं आया, लेकिन जो हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी लोगों को फिर कहीं पर बसाया जाए, कहीं पर भी जी जमीन। ठीक है, हम आपकी बात समझ गए नूर अमीन साहब। हाँ। आगे बढ़ते हैं, हम आपकी बात समझ गए। अब डॉक्टर जाफरीन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
इनकी बातों को सुनकर आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली बार ये बातें कहा, और मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हिंदू और मुस्लिम वहाँ जो भी बसा हुआ था सबको वहाँ से हटाया गया है, सिर्फ एक खास समुदाय को वहाँ से नहीं हटाया गया है। एग्जैक्टली चौहान जी, आप सही बताए हैं, क्योंकि बेदखलकारी जो शब्द है उसका कोई धर्म नहीं होता है। बेदखलकारी, एनक्रोचर्स आर एनक्रोचर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड। तो एनक्रोचर्स, बेदखलकारी कौन से धर्म के हैं उससे हम लोग को, सरकार को मतलब नहीं है। सरकार को एक ही ये है, उन लोग का एक ही एजेंडा है, सरकार का एक ही एजेंडा है कि बेदखल मुक्त एक असम बना के खड़ा करना है। और जैसे कि अभी चौहान जी आपने काफ़ी आंकड़ा दिए हैं अभी हमारे बीच में, जो कौन कौन से 11 जिले में, मेरे पास भी इतना आंकड़ा थे नहीं, वैसे आप जैसे अभी बतलाए हैं, ये हमारे रिव्यू कमेटी का जो रिपोर्ट आए हैं वहाँ से मालूम पड़ता है कि किस हद तक हमारी बेदखलकारी सरकारी ज़मीनों पे बैठे हुए हैं। पर अहमियत की बात ये है कि जब क्षत्र या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान के जगह में कोई लोग जाके बसे तो उन लोग का भी ये नैतिक और मौलिक दायित्व बनता है कि वो ज़मीन छोड़ दे इज्जत से, क्योंकि जब प्रशासन उनके पास जाके प्रतिवेदन, उन्होंने जब प्रशासन के पास जाके प्रतिवेदन दाखिल किए और प्रशासन उन लोग के साथ काफ़ी बार विस्तार में चर्चा किए, तभी वो लोगों को, जो वे लोग वहाँ पे जो बसे हुए हैं, उन लोग को उसी समय एक सिद्धांत लेना चाहिए था। और अभी जैसे कि अभी ये आपकी विद्युत भी वहाँ पे डिस्कनेक्ट किया गया है, जैसे भी आज जेसीबी भी वहाँ पे एक्टिवली डिमोलिशन के काम कर रहे हैं। सो इट इज़ understood that people should have been little more alert, and it cannot be said that people are not knowing what is going to happen, and this is a strategy of Congress has patronized encroachers. कांग्रेस ने पेट्रोनाइज कर दिया एनक्रोचर्स को। फिर सवाल एंड अगेन कमिंग बैक टू चौहान जी, अभी कमिंग बैक टू द एजेंडा ऑफ द डिस्कशन, दिस वाज द फ्यूचर फोरकास्ट ऑफ कांग्रेस देन ओनली। बट प्रॉब्लम इसमें आते हैं कि आज कौन सफ़र कर रहे हैं, आज कौन भुगत रहे हैं? जो लोग वहाँ पे बसे हुए हैं। और उन लोग बसे कैसे, उसका भी खुलासा संवाद माध्यम में, टीवी चैनल में आप लोग के यहाँ पे भी लोगों ने बताया है उन लोग कैसे बसे हैं वहाँ पे जाके। तो नाउ द क्वेश्चन गोज टू ऑल द कॉमन पीपल, हाउ कैन पीपल, एनीबडी गो एंड एनक्रोच क्षत्र लैंड? हाउ कैन एनीबडी गो एंड एनक्रोच गवर्नमेंट लैंड, सीड कॉर्पोरेशन लैंड और एनी डिपार्टमेंट्स लैंड? जी, यही सवाल हम रमन झा जी से कर लेते हैं। रमन झा जी, एक सवाल बार बार आता है कि पहले की सरकारों ने इन लोगों को वो पनाह दी और इस तरह से वो बच गए। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सवाल आप पर उठ रहे हैं, या आपको लगता है कि जो अधिकारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत से ये काम हुआ है? देखिए, इन्होंने कहा असम में इससे पहले 2 बार असम गण परिषद की भी सरकार आई है। प्रफुल्ल महंता मुख्यमंत्री थे, उसके बाद आज तकरीबन 6-7 साल से भाजपा की सरकार है, 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो सरकारें आती और जाती हैं, कोई भी सरकार नहीं चाहता कि सरकारी ज़मीनों का कोई दखल करे, लेकिन कई बार क्या होता है 1991 में भाई साहब 1991 में हितेश्वर सैकिया जी ने, उस समय वो मुख्यमंत्री थे असम के, उसी समय उन्होंने ये बेदखलकारी को बहुत अच्छी तरीके से परिकल्पना करके कोई भी नोटिफिकेशन, देखिए सरकारी कोई भी नियम मुंह से नहीं चलता है। मैं आपको यहाँ चुनौती देता हूँ सीधे तौर पे, से नहीं चलता। 1991 से लेकर 1995 तक हितेश्वर सैकिया असम के मुख्यमंत्री थे। कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी ऐसा ऑथराइज लेटर आप दिखा दीजिए जिसमें उस समय की कांग्रेस सरकार या हितेश्वर सैकिया की सरकार ने माने आपको अवैध नागरिकों को बसने के लिए या जमीन अधिग्रहण माने लोगों को जमीन दखल करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन इशू किया हो। देखिए, बातें लोग बनाते हैं, रुक जाइए, बातें बनाते हैं, नहीं था वो कांग्रेस नहीं, सरकार का सिद्धांत नहीं था। रमन झा जी, मेरी बात व्यक्तिगत दूसरी बात बार-बार यहाँ कहा जाता है, उसी में डिफरेंशिएट होता है। रमन झा जी, नहीं रुक जाइए, मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए कि मैंने कहा जाता है बेदखल मुक्त असम, बार-बार ये शब्द कहा जाता है बेदखल मुक्त असम, जबकि सरकारी जमीनों का बेदखल जो हुआ है उसे खाली करवाया जाए, सत्र के जमीन को, मंदिर के ज़मीन को जिन्होंने दखल किया उसे खाली करवाया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर बेदखल मुक्त असम क्या होता है?
ये कौन लोग हैं? नहीं रुक जाइए, देखिए ये कौन रमन लोग जी, हैं? आप इन्हें मुक्त करके असम से बाहर कहाँ भेजना चाहते हैं, यह तो निश्चित कीजिए। आप बार बार कह रहे हैं बेदखल मुक्त असम, अगर या तो ये बांग्लादेशी नागरिक हैं या विदेशी नागरिक हैं या तो हैं, अगर ये हैं तो इन्हें बाहर कीजिए। आप इन्हें असम से बाहर कहाँ भेजेंगे? इन्हें आप दिल्ली में जाके बसाएंगे, बंगाल में बसाएंगे, गुजरात या राजस्थान में जाके बसाएंगे, क्या कहाँ बसाएंगे? पहले तो ये निश्चित कीजिए कि बेदखलकारी कौन है। आप बार बार संदेशयुक्त नागरिक, विदेशी नागरिक, आप ये मैं चुनौती देता हूं सरकार। जी बिल्कुल, आप ये बेदखल मुक्त असम क्या होता है? आप ये सवाल उठा रहे हैं, सरकारी जमीन का दखल, आपके पास मौका है, आप करवा असेंबली में जाए। इस बात को उठा सकते हैं, आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, निश्चय। लेकिन सरकारी पक्ष ये कह रहा है कि इन सारे लोगों से बातचीत की गई है, आयोग गठन किया गया, आयोग ने इन सभी लोगों का पक्ष सुना और उसके बाद ये फैसला लिया है। आज हम देख रहे हैं कि जो अभियान चल रहा है वो शांतिपूर्ण रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये ऐतिहासिक है कि एक जो बेदखल अभियान चल रहा है और शांतिपूर्ण है? किसी भी प्रकार के, मैंने पहले भी कहा, किसी भी 1988 में 1988 में असम गण परिषद की सरकार थी। सुनिए, सरकार किसका था वो आप मुझे भी बोलने मौका दीजिए। आप ठीक है, आप सुनिए, जो भी है वो लोगों को मालूम है, थोड़ी ना कुछ ब्रेकिंग न्यूज आप बोल रहे हैं। जिस विषय में बात कर रहे हैं उसी विषय में आप अरे रहिए। आप रमन झा जी, आप मेरे बात देखिए, 1988 में जब आपकी सरकार थी तो क्या हुआ था कि 44 एक्स सर्विसमैन को वहां पे लैंड अलॉट किया गया था। हमारा सरकार नहीं था वो 1988। हाँ 1988, हाँ जी, हमारा सरकार नहीं था, आपका सरकार नहीं था। तो 1988 आप बोलने के लिए मुझे मौका दीजिए, या तो आप ही बोल लीजिए, आप खत्म कर लीजिए, उसके बाद हम बोलेंगे। ठीक है, आप आखिरी का बात देखिए, अभी विषय में मुझे कंप्लीट करने दीजिए, ऐसे हम लोग टॉक शो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अभी देखिए 1988 में कितने लोगों को, अराउंड 44 लोगों को, एक्स सर्विसमैन को वहां पे रहने के लिए जमीन दिया गया था। नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट दिस लैंड इज इन द विलेज कॉल्ड लालुंगगांव। व्हाट इज लालुंगगांव? लालुंगगांव क्या है? जैसे कि हमारे पूरे उत्तर पूर्व के लोग यहाँ पे दर्शक देख रहे हैं, लालुंग एक ट्राइब है असम के, वो एक प्लेन ट्राइब है असम के, और लालुंग मुस्लिम लोग नहीं है, लालुंग इंडिजिनियस ट्राइबल पीपल ऑफ असम है, एक ट्राइब है लालुंग। तो वहाँ पे उस जगह पे आप जाएंगे, लालुंग गांव का नाम निशानी नहीं है अभी, ना कोई एक लालुंग समाज के कोई व्यक्ति आपको मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि इन लोग को रहने के लिए भी जगह नहीं दिया गया था, सरकार ने जगह दे दिया था, पर जब बेदखलकारी आए, ये 44 लोगों को, एक्स सर्विसमैन को जो जमीन दिया गया था, उन लोग को भगा दिया गया, वो लोग रह ही नहीं पाए। साथ ही में लालुंग गांव के एक भी लालुंग आदमी वहां पे बस नहीं पाए। तो अंत में जाके क्या हुआ कि हमारे असम के जो इंडिजिनियस लोग हैं, नॉट जस्ट ट्राइबल, बोथ ट्राइबल, हर जनजाति जाति के लोग भी उसमें इंक्लूड होते हैं। जब हम लोग इंडिजिनियस लोग बोलते हैं, उसमें धर्म का कोई बात नहीं आता है, पर प्रॉब्लम यह है कि कोई इंडिजिनियस लोग वहाँ बैठ ही नहीं पाए। जब बेदखलकारी वहाँ पे घुस गए, उन लोग को भगा दिया गया लालुंग गांव से। उसके बाद अभी देखिए सरकार किसका है किसका नहीं, उसमें आप और हम तू मैं कर सकते हैं, पर अहमियत की बात यह है कि कोई भी सरकार पहले 2016 से पहले किसी ने भी पदक्षेप हाथ में लिया नहीं कि बेदखलकारी को वहां से वहां बेदखलकारी जमीन, बेदखल हुआ जमीन को मुक्त किया जाए। अभी जैसे सरकार एक पदक्षेप लिए है, हम सोचते हैं और आग्रह करते हैं असम के जनता को कि आप लोग समर्थन कीजिए, और अगर आप लोग कोई विरोधिता करते हैं तो न्यायालय है, आप लोग वहां पे विरोध नहीं किया है, हम तो समर्थन कर रहे हैं। और साथ ही में अगर हम लोग एक लीगल प्रोसीजर में जाएंगे, अगर प्रोसीजर में तो हम तब जाएंगे जब हम इसका विरोध करें। हमने तो बेदखलकारी को खाली करने से कोई विरोध नहीं किया, और आपने ठीक ही कहा कि तो आप ये एक तरह से नाकामी रही पूर्व की सरकारों की। क्या आप मानते हैं? नहीं तो क्या आप मानते हैं कि इससे पहले जो सर्बानंद सोनोवाल सरकार थी 5 साल की, वो नाकाम सरकार थी? नहीं, कम से कम आप बताइए, 5 साल सरकार नाकाम सरकार थी? जी, आप इसको सवाल कर रहे हैं, ये लोग ये विश्वास करते हैं कि वो कामयाब सरकार थी। मानने से कुछ नहीं होगा। रमन झा जी, ये इतिहास है कि पहले से अगर अतिक्रमणकारी वहां नहीं बसे हुए होते तो आज उनको हटाने की जरूरत नहीं पड़ी होती, तो आखिर वो कैसे बस गए, ये सवाल आता है। फिलहाल हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहे।
मुद्दा में आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आज बटद्रोआ में चलाए जा रहे बेदखल अभियान की, और इसलिए भी कि ये बेदखल अभियान जो है वो शांतिपूर्ण रहा है और इसमें सरकार को भी समर्थन मिल रहा है। कुछ लोग जरूर ये बातें उठा रहे हैं कि जो लोग इसमें विस्थापित हुए हैं उनको पुनर्वास के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शांतनु नाइक। शांतनु नाइक, आप कुछ कहना चाह रहे थे, हमने आपको पहले मौका नहीं दे पाए, हम अब आप बोल सकते हैं। नहीं, ये मेरा कहने का मतलब यही है, ये जो 36,000 जो आपने कुछ देर पहले जो आयोग बनी थी, सरकार ने जो आयोग बनाई थी, इस कितनी जमीन सरकारी जमीन बेदखल हो चुकी है, उस आयोग के मुताबिक जो आपने जो आंकड़ा दिया है कुछ देर पहले, ये 36,000 हेक्टेयर या कुछ ऐसे ही बोले, और 11 जिलों में। तो ये जो है, जो ये छत्र की जमीन हो कि वहां के जो स्थायी बाशिंदा है उन लोग को वहां से वो उठाया गया या वहां से जोर जबरदस्ती उन लोग को हटाया गया, ये सब जो हो रहा है, ये सब जो हो रहा है, किसी तरह कोई ना कोई इसके पीछे इतने सालों से कोई ना कोई मदद दे रहा था। कोई पॉलिटिकल, अगर बिना पॉलिटिक्स के तो संभव ही नहीं है। कोई अपनी मर्जी से अगर उन लोग को फीडबैक नहीं मिलता, उन लोग को सहायता नहीं मिलती है, तो कोई करेगा ही नहीं ऐसा। जरूर उन लोगों को सहायता मिल रही थी इतने सालों से, जिसके लिए कुछ हो रहा था। और सरकारी जमीन तो बेदखल, वो जो सरकारी जमीन सरकारी जमीन जो दखल की हुई है वो तो मुक्त होनी चाहिए। शांतनु नाइक जी, सरकार की जमीन जो सरकार के हम लोग ने पहले जो हम लोग को शांतनु नाइक जी, बीजेपी के प्रवक्ता जाफरीन महजबिन हमारे साथ हैं। आप इनसे सीधा सवाल कर सकते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग वहां से विस्थापित हो रहे हैं वो तो कहीं और जाकर बसेंगे, सरकार इसके लिए क्या कर रही है? आप सीधे सवाल इनसे पूछ सकते हैं। नहीं, हमारा कहने का यही मतलब है, जो सरकारी जमीन जो आज सरकार निकाल रही है, जो आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है कि 36,000 हेक्टेयर जमीन निकल चुकी है, माने इसके मतलब क्या है, जो वो इतने सालों से, इतने दशक से वो जमीन बेदखल हो चुकी थी, तो आज ये सरकार प्रयास कर रही है कि वो जमीन को निकाला। इस तरह हर जिले में जहां जहां सरकारी जमीन बेदखल हो चुकी है वो जमीन को निकालना चाहिए। और वह सरकार, जैसे कि हम लोग को पहले सुनने आता था, जो हर जीपी लेवल में ग्रेजिंग फील्ड होता था, माने ये चारा जमीन जिसको बोलते हैं, जो गाय भैंसों को चराने के लिए। आज किसी गांव में चले जाए, किसी जीपी में, मेरे ख्याल से शायद ही कोई जीपी बचा हुआ होगा जहां ग्रेजिंग फील्ड मिलेगा आपको। तो इस तरह हर जगह हर जमीन ही दखल हो चुका है जो सरकारी जमीन है। तो इसमें जो सरकारी जो आपको ये लैंड विभाग है, जो माने जो सेटलमेंट ऑफिस है या सर्कल ऑफिस है, इसका क्योंकि ये सब का जो ये होता है, जो रिकॉर्ड होता है, वो तो सरकारी जो कार्यालय होता है, लैंड रिकॉर्ड जो डिपार्टमेंट है, यानी कि सेटलमेंट ऑफिस बोले या सर्कल ऑफिस, वहां से इन लोगों को, इसमें हो सकता है कि ये जो इतने सालों से जो कुछ हो रहा था, ये सरकारी जो कर्मचारी थे उन लोग की मदद से भी हो सकता है, उन लोग की मदद से हो रहा। हमारा सवाल ये भी था शांतनु नाइक जी कि सरकारी अधिकारी जिनसे ये गलती होती है जी, इससे ये प्रमाण होता है कि सरकार अगर कोशिश करे तो जितनी सरकारी जमीन दखल की गई है सब निकाली जा सकती है। एक प्रमाण हो रहा है जी। ठीक है शांतनु नाइक जी। नूर अमीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के नेता, स्थानीय नेता हैं। नूर अमीन जी, आपने कहा कि सरकार जो कर रही है वो सही फैसला है, सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाना सही है, लेकिन जो लोग जिनके घर नहीं है उनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप स्थानीय वहाँ के वासी हैं, क्या आपको लगता है कि जब ये लोग बसे थे या बस रहे थे, उस वक्त की स्थिति क्या थी? ये क्या आपको लगता है कि उस वक्त अधिकारी जो थे वो भ्रष्टाचारी थे, या जो आपको जो राजनेता हैं उन पर लग रहा है कि वो भ्रष्टाचारी थे? कैसे संभव हो पाया कि सरकारी जमीन पर इतने सारे लोग और इतने बड़े क्षेत्रफल में वहां बसे? हो सकते हैं कांग्रेस या उस समय के एजीपी, कांग्रेस या एजीपी ने अपना वोट बैंक बचाने के लिए कोई लोगों को कहीं से लाकर यहाँ पे स्थापित कर सकता है, ये हमारा डाउट होता है। नहीं, उस समय तो एनसीपी पैदा भी नहीं हुआ था, वो टीएमसी के नेता हैं। सॉरी, टीएमसी तो
उस समय टीएमसी तो जन्म भी नहीं ले रहा था, टीएमसी पैदा भी नहीं हुआ था उस समय। जब आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस बैठा दिया होगा या एजीपी बैठा दिया होगा, पार्टी बनने से थोड़े होता है वो। आपका सिद्धांत क्या था? आप कहाँ थे उस समय? नहीं, आप किस पार्टी में थे उस समय? बात ये है क्योंकि आप उस समय किस पार्टी में थे? टीवी पे देखा था, किसी ने कहा वो कांग्रेस का मंत्री गौतम बोरा, अगप का मंत्री वो दिगेन बोरा, उसने पहले इसी लोगों को यहाँ पे बिठाया और बैठा कर उसे कहा कि यहाँ पे आप लोग बैठ जाइए और कोई किसी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे हम नहीं कहा, वो जो इविक्शन करने वाला लोग है, इविक्शन करने वाला जो आदमी है, वो घर जिसको तोड़ा उस लोगों ने कहा, गौतम बोरा या दिगेन बोरा ने उसी समय जो बेदखल हो रहे हैं वो तो कई तरह के आरोप लगाएंगे। ये इसका प्रामाणिकता तो सरकारी पदाधिकारी देगा के ऊपर मैं सरकारी ऑफिसर मैं बोल रहा हूँ। जी हाँ, इसलिए वोट बैंक बनाने के लिए भी ये किसी समय कांग्रेस वोट बैंक के लिए जी। आप कहाँ थे उस समय, किस पार्टी में थे? नहीं रमन जी, उनको टोकिए नहीं, आप इस तरह से सवाल उनसे कर रहे हैं। वो एक सवाल उठा रहे हैं, अगर आप उनको जवाब देना चाहते हैं, आपके पास मौका है, जवाब दे सकते हैं जी, पूरा कीजिए नूर अमीन साहब। हाँ, वो ये लोग आज से लेकर 50 साल से यहाँ पे बैठ रहा था, और 50 साल से कौन यहाँ पे रूलिंग कौन कर रहा था? कांग्रेस कर रहा था। और इसके पहले 5 या 8 साल के लिए अगप ने किया था, और अगप के मिनिस्टर वो दिगेन बोरा जी था और गौतम बोरा जी था, और गौतम बोरा जी और दिगेन बोरा जी वो 2 मिनिस्टर ने कभी कहीं से लाकर वो आदमी को यहाँ पे बिठाया था, और आज से इसलिए अभी कर रहा है वो तोरजू का खजाना टैक्स भी दे रहा है। ठीक है अमीन, नूर अमीन साहब, मैं चाहता मैं सोचूंगा, मैं चाहता हूँ कि जो जैसे हो ये बेदखलकारी लोगों को हटाकर वो 17 जमीन जो है 17 जमीन को मुक्त करना चाहिए जी। लेकिन जी ह्यूमैनिटी के लिए तो जो बेघर हो गया इसे कहीं पर स्थापन करना ही होगा। मैं सरकार की मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा जी को मैं यही बोलूंगा जी। आपकी बात पूरी बात आ गई है नूर अमीन साहब। हमारे पास समय की कमी है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं जाफरीन महजबीन। आप क्या यहाँ बताना चाहेंगी कि आने वाले दिनों में जो पहले जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स हुई है अब वो नहीं होगी और इसी तरह से आगे कार्रवाई जारी रहेगी? मैं दोहराना चाहूँगी चौहान जी कि आप जो बोले हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीजेपी भाजपा पूरे देश में अपीजमेंट टू नन एंड जस्टिस फॉर ऑल उस आइडियोलॉजी में चलते आ रहे हैं और चलते जाएंगे आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ियों के साथ। दूसरी बात यह है कि हम लोग कभी वोट बैंक की पॉलिटिक्स हम लोग को करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो जितने लोग हैं भाजपा को सपोर्ट करने वाले, हमारे कार्यकर्ता इतने ज़्यादा हैं। और अब जैसे कि पार्टी रिलेटेड एक सवाल किए हैं चौहान जी, उसमें हम जवाब देते हैं कि पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ी तादादगी में हमारे खाली भारतीय जनता पार्टी प्रतिष्ठा कर पाए हैं पूरे विश्व में, खाली भारत में नहीं। और आप क्या सोचते हैं कि हम लोग को वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी होगी? जी, अब चुनाव समय जीतने के लिए जाफरीन जी, कभी नहीं क्योंकि आपने कह दी तो ये भी कुछ बोलेंगे, लेकिन हम समझ गए कि आप बोलना क्या चाहते हैं। आखिरी प्रतिक्रिया थी और समय की कमी है। फिलहाल इसमें हमने चर्चा की कि आज जो बेदखल अभियान था वो शांतिपूर्ण रहा। ये काफ़ी ऐतिहासिक है क्योंकि आज तक बेदखल अभियान हमेशा से हंगामेदार होते रहा है, लेकिन इस बार किसी ने सवाल नहीं उठाया। आगे अगर कोई सवाल उठाता है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। सबको धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।